یہ صاف و شفاف الیکشنز نہیں تھے، یہ دھاندلی الیکشنز تھے، یہ گولی الیکشنز تھے، یہ قاتل الیکشنز تھے، یہ خونی الیکشنز تھے۔ یہ سب کچھ کے باوجود آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے 9 سیٹیں نکلوائی ہیں۔ جو آپ کے چوری ہوئے سیٹیں ہیں میرپور کے، مظفر آباد کے، وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دلواؤں گا۔ آپ نے 4 اگست کو بازل نقوی کو اور جاوید ایوب کو مظفر آباد سے جتوانا ہے۔ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ یہ صاف اور شفاف انتخابات نہیں تھے، یہ دھاندلی زدہ گولی، قاتل اور خونی الیکشن تھے۔ چیئرمین بلال بھٹو زرداری نے ویڈیو پیغام میں کہا، پونچھ والوں میں آ رہا ہوں، آپ تیاری کریں۔ میرپور و مظفر آباد میں جو سیٹیں آپ سے چوری کی گئیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو دلواؤں گا۔ آپ نے مسلم لیگ نون کی سازش کو ناکام کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی ہمت نہیں ہارتی، ہم کبھی میدان نہیں چھوڑتے۔ جو مفادات مسلم نون ان کو زیادہ ترجیح ملی، پیپلز پارٹی اپنے کشمیری بھائی بہنوں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ترجیح دیتی ہے اور ہمیشہ دیتی رہے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی آخری مرحلے تک میدان خالی نہیں چھوڑے گی۔ آزاد کشمیر کے انتخابات میں تاریخی دھاندلی کی سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کی الٹی گنتی کا وقت شروع ہو گیا۔ وزیر سندھ شرجیل الرحمان میمن نے کہا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ پی پی امیدواروں کو ہرانے کے لیے نون لیگ اور الیکشن کمیشن کا گٹھ جوڑ تھا۔ 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کی روایت کو آزاد کشمیر میں دہرایا گیا۔ بلال بھٹو نے واضح کہا تھا، کشمیر کے الیکشن شفاف ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی آخری مرحلے تک میدان خالی نہیں چھوڑے گی۔ آزاد کشمیر کے الیکشن میں وہ سمپل میجورٹی گورنمنٹ فارمنگ نمبر جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے۔ ٹوٹل 45 سیٹیں ہیں جن پہ الیکشن ہونا ہے۔ ابھی تیسرے مرحلے میں جو ہے وہ 10 سیٹوں پہ الیکشن ہوگا، کیونکہ ایک سیٹ پہ ایک کینڈیڈیٹ کے فوت ہونے کی وجہ سے الیکشن پہلے ہی ملتوی ہو چکا ہے۔ تو 45 سیٹوں میں سے اس وقت 23 کا نمبر جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے حاصل کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر الیکشن میں سادہ اکثریت حاصل کرنے کا دعویٰ۔ مشیر وزیر اعظم سیاسی امور سینئر لیگ رہنما رانا ثناءاللہ نے کہا کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون نے سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے۔ عوامی مینڈیٹ سے حکومت قائم کی جائے گی۔ نئی حکومت آزاد کشمیر اور تحریک آزادی کے تمام تر نظریاتی اور سیاسی معاملات پر قابو پائے گی۔ آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات مکمل طور پر شفاف ہیں۔ پیپلز پارٹی کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ وہ الیکشن ہار گئے، انہوں نے دھاندلی کا شور مچا دیا۔ پیپلز پارٹی نے قلعہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر مظفر آباد کے حالات خراب کیے، مل کر جگہ جگہ حالات خراب کیے گئے۔ بلال بھٹو سے کہتا ہوں، کارکنان سے ہنگامہ آرائی کی تحقیقات کروائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی برداشت کا، تحمل کا اور رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور جس طریقے سے آج وزیر اطلاعات سندھ اور سینئر منسٹر جناب شرجیل میمن صاحب کی طرف سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے، تو میں چند گزارشات ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ لوگوں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ تعمیر و ترقی پہ کرنا تھا۔ لوگوں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ اس بنیاد پہ کرنا تھا کہ کون سی سیاسی جماعت نے کشمیر کی عوام کو، کشمیر کو اپنی ترجیحات میں رکھا ہے، کس کا خدمت کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے۔ ہماری اکثریت ہمارے مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہی۔ پیپلز پارٹی کو تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا طاہر نے کہا، شرجیل میمن نے آج بے بنیاد الزامات لگائے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ الزامات کے ساتھ ناقابل تردید شواہد بھی دیتے۔ الزامات کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے پہلے پیپلز پارٹی کو گلگت الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد دی۔
जैसे नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान में मुबारक दी, आप भी मुबारक दें। वो बताएं कि उन्होंने क्या किया है अभी तक, और अगर उन्होंने 18 साल तक वो अपने लोगों को नहीं बता सके कि उन्होंने क्या किया है, तो मेरा ख्याल है ये खुद उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है। और मैंने तो वैसे, मेरी नालायकी होगी, मैंने तो नहीं देखा कि आप खुद भी मीडिया के लोग कल सब ग्राउंड में थे, आपने किसी ने देखा हो कि किसी ने जो है वो किसी को कहा हो कि जी हम पीपल्स पार्टी को वोट डाल के आए हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशार और फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। शिकस्त खुर्दा जमातें नताइज तस्लीम करने के बजाय इंतशार की सियासत कर रही हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, पीपल्स पार्टी 18 साल से इक़्तिदार में रही। उस्मा बुखारी का कहना था कि कारकर्दगी को अवाम ने वोट दिया, कारकर्दगी बताने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कुछ नहीं। मुखालिफिन ने धांधली के इल्ज़ामात पर एक भी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई। कश्मीर के अवाम ने कारकर्दगी को वोट दिया है। आज़ाद कश्मीर असेंबली के इंतखाबात का दूसरा मरहला मुस्लिम लीग नून के नाम। दूसरे मरहले में नून लीग ने 20 में से 14 सीटें अपने नाम कर लीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 हलकों को फतह करने में कामयाब रही। 19 हलकों के गैर हत्ती गैर सरकारी नताइज जारी। इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने मुज़फ्फराबाद डिवीजन की 7 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल ने कहा, 2-4 नशिस्तें नहीं हैं तो नहीं कहा जा सकता कि असेंबली मुकम्मल नहीं। मुज़फ्फराबाद में टर्न आउट की शरह 54% रही। मीरपुर डिवीजन में वोटिंग का तनासब 43% रहा। शहरियों ने मुस्बत तर्ज अमल का मुजाहिरा किया। अहले मुज़फ्फराबाद 6 से राजा फारूक कामयाब हुए। तो जो पुंछ की सूरत हाल है, वहाँ हस्ब प्रोग्राम 10 तारीख को इंशाअल्लाह ताला बाग की 3 नशिस्तें, वैली की 1 नशिस्त और अब्बासपुर की भी नशिस्त पर इलेक्शन करवाने हम जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम हमारे ज़ेरे गौर बलोच और बुलंदरी भी है कि अगर वहाँ से हमें रिपोर्ट मिलती है अच्छी, तो जिस तरह लोगों ने यहाँ बाहर निकल कर वोट दिए हैं और तमाम प्रेशर को, तमाम हरबों को मुस्तरद किया है। ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा। सऊदी अरब, यूएई, कतर ईरान की दरख्वास्त पर मनसूख किया। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता के कई इत्तेहादी भी फौरी कार्रवाई की बजाय सिफारती हल के हामी हैं। मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, मेरी तरजीह मुआहिदा करना है। ट्रंप ने मजीद कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात आज दोपहर से शुरू होंगे। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि ईरान इस वक्त अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। मुज़ाकरात सिर्फ आबनाए हॉर्मुज़ के आर्जी महफूज रास्ते से मुतालिक उम्मान से हो रहे हैं। ईरान और अमेरिका से मुतालिक मामलात में पाकिस्तान सालिस है। हॉर्मुज़ कभी भी जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। अमेरिकी खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो आबनाए हॉर्मुज़ की सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा में ख़ित्ते की सूरत हाल पर अहम तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं ने मकबूजा मशरिक़ी यरूशलेम की बिगड़ती सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। पाक ईरान सिफारती राब्ते 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची को जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत दी। खलीजी ममालिक ट्रंप की ईरान पॉलिसी से सख्त परेशान और मायूस हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात में अरब ममालिक ने अमरीकी पॉलिसी वाज़ेह न होने पर तशवीश ज़ाहिर की। ट्रंप ने जंग शुरू करने से कबल खलीजी इत्तेहादियों से मुशावरत नहीं की।
खलीजी रियासतें अब सिक्योरिटी चाहती हैं। सऊदी अरब मुज़ाकरात और अमारात सख्त कार्रवाई का हामी है। अमेरिका का खलीज में फौज कम करने पर जोर। सवात में आमन दुश्मनों का वार। सवात में थाना कबल के करीब खुदकुश धमाका। शहदा की तादाद 17 तक पहुंच गई। खुदकुश हमले में 7 पुलिस एहलकार और 10 शहरी शहीद, 23 जख्मी हुए। सवात धमाके का मुकदमा थाना CDD में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दिफात शामिल। दूसरी जानिब हमले में शहीद होने वाले 5 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 2 माह से मौसर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शुमारी वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए। शुमारी वज़ीरिस्तान के इलाका खटी कली में कार्रवाई के दौरान मुताबिक ख्वारिज को जहन्नुम हासिल किया गया। हालांकि ख्वारिज दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निजी सरमाकारी के फ़रोग़ व पायदार मुआशी तरक्की से मुतालिक जायज़ा इजलास। पब्लिक और प्राइवेट इक्विटी फ़ंड के फ़रोग़ के लिए जामे रोड मैप तैयार करके जल्द पेश करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए निजी सरमाकारी के फ़रोग़ को नागुज़ीर करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी इदारों की निजकारी के अमल में पेशरफ्त का जायज़ा लिया। निजकारी प्रोग्राम के तमाम मराहिल मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के वक्त की अहम मुलाकात। OPF और ग्रीन एनर्जी ग्रुप के इश्तराक से पंजाब में जदीद ग्रीन इकोनॉमिक जोन कायम करने की तजवीज़ पेश की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ग्रीन इकोनॉमिक जोन की तजवीज़ पर आमादगी अमल दरामद के लिए जामे एक्शन प्लान तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मुकामी और गैर मुल्की सरमाकारों के लिए ख़ुसूसी मराती पैकेज का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर बोलॉर्ड मैगा बाज़ौर की अहम मुलाकात। बच्चों की नशोनुमा की कमी के खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली पर इत्तेफाक। सिंध में सेहत, ग़ज़ाइयत, साफ पानी, निकासी आब, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत के शोबों को एक मुश्तरका फ्रेमवर्क के तहत यकजा करने का फैसला। सिंध सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम को मज़ीद 7 अज़ला तक तौसी देने का फैसला। प्रोग्राम सिंध के तमाम अज़ला में मरहलावार नाफिज किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। सबसे ज़्यादा 34.4 मिलीमीटर बारिश शादीपुरा में रिकॉर्ड की गई। PDMA ने सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खुद तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर कर रही हैं। आगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतालिका महकमे अलर्ट और तैयार। बरसगीर के अजीम सूफी बुज़ुर्ग सैयदना अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का 983वां उर्स। अली बिन उस्मान हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अल-मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात अक़ीदत और एहतराम के साथ जारी। उर्स के दूसरे रोज़ भी लाखों की तादाद में मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की आमद जारी। दरबार और अतराफ़ में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी तरीन इंतज़ाम। मुख्तलिफ पकवान पेश। दूध और शरबत की सबीलों से ज़ायरीन की तवाज़ो जारी। और पाक वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट मैच। वेस्ट इंडीज ने पहले वनडे पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटों पर 239 रन बना दिए। बारिश के सबब पहले दिन का खेल 15 मिनट ताख़ीर से शुरू हुआ। पहले सेशन में सिर्फ 9.5 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका। दूसरे सेशन में पाकिस्तानी बॉलर्स को मजीद 3 कामयाबियां मिली। वेस्ट इंडीज की जानिब से ब्रैंडन किंग 46, केएम होज 10 और आमिर जंगो 26 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे सेशन में शाय हॉप 29 रन बनाकर आउट हो गए।